وہ لانچ میں بیٹھی فون پر کچھ دیکھتے رکی تھی اور صدف کی طرف متوجہ ہوئی۔ مما میں تو یہ نیو کٹ لینا چاہتی ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑتے مسکا لگاتے بولی، یہ کٹنگ کہاں سے یاد آ گئی؟ اتنے پیارے تو بال ہیں میری جان کے، ویسے بھی اتنے لمبے بھی نہیں ہیں، پھر کیوں کٹوانے؟ وہ اس کے براؤن سلکی کندھوں سے تھوڑے نیچے آتے بال دیکھتے ہوئے بولی، بیکاز یونی میں سب کی کٹنگ ہے مما، مجھے کٹوانے ہیں پلیز۔ اوکے کٹوا لو، وہ ہار مانتے بولی۔ وینی آپی آپ چلیں گی میرے ساتھ سیلون؟ وہ اب وانیہ کے سر پر سوار تھی۔ کدھر جانے کی تیاری؟ اللہ ان کا آنا ضروری تھا۔ وہ لاؤنج میں اپنے سامنے برجمان ہوتے شخص کو دیکھ بدمزہ ہوئی جو اس کے مطابق اس کی ہر چیز کا دشمن تھا۔ ہیئر کٹ لینا ہے آپ کی بیوی نے، وینی نے ہنستے بتایا اور لمس نے گھورا۔ اور روم میں سویٹ ہارٹ تمہارا ہیئر کٹ میں خود کروں گا۔ صوفے سے ٹیک لگائے جتنے آرام سے وہ بولا تھا اس کا طنز وہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اسے اگنور کرتے وہ روحانسی ہوتے پھر صدف سے بولی تھی، وجدان لینے دو۔ صدف نے اس کا ساتھ دیا، ہیئر کٹ تو لے آئے مگر پھر آپ کی بہو کی ٹانگوں کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ سرد لہجے میں اسے دھمکاتے وہ چلا گیا تھا۔ لے لیا میری بیبی نے ہیئر کٹ، وانی نے ہنستے تنگ کیا۔ چپ کریے وانی آپی، مما ایک نمبر کا بدتمیز ہے آپ کا بیٹا، وہ غصے سے بولی۔ بری بات شوہر ہے، وہ مسکراتے اسے ساتھ لگاتے بولی، تو یہی تو سب سے بڑا دکھ ہے ماما۔ لمس نے دانت پیسے جبکہ وانیہ اور صدف نے کہکا لگایا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ٹکٹ دلوائیں گے ملک صاحب، وہ متانت سے بولی تھی۔ کون ہو تو؟ ملک عزلی لاپرواہی سے بولا۔ روم نمبر 113 بھول گئے آپ؟ وہ لڑکی صدمے میں تھی جو اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر بیٹھی تھی۔ ایم جے نے افسوس سے دیکھا تھا، یہ کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو دولت اور شہرت کے چکر میں عزت تک گوا بیٹھتی ہیں۔ تم پر ترس کھاؤں یا افسوس کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ ملک کے نکالنے کے بعد وہ اس روتی لڑکی سے مخاطب ہوا تھا کہ ملک تمہیں کیا ٹکٹ دلوائے گا جس کو اپنی نفسیاتی خواہشات سے ہی فرصت نہیں ملتی؟ جبکہ وہ شرمندگی کی گہرائیوں میں تھی۔ ملک صاحب ایک بات آپ سے کہوں، یہ ایم جے مجھے مشکوک بندہ لگتا ہے، یہ آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف آپ کو ٹرخاتا ہے۔ یہ کوئی خاص چیلا ہے ملک کا جسے ایم جے سے پرابلم تھی؟ مجھے بھی کچھ یوں ہی لگ رہا ہے۔ خیر تمہیں ایک کام کہا تھا۔ جی آپ سن کر خوش ہو جائیں گے، وہ پرجوش سا بولا تھا۔ تو بولو کیا پتا چلا؟ وہ وجدان کے بارے میں کچھ خاص تو نہیں پتا چلا کہ وہ کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے۔ ہاں اپنے باپ کی کمپنی کو دیکھتا ہے، پر البتہ اتنا پتا چلا ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، وہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہے۔ اور اس کی بیوی، واللہ کیا بتاؤں آپ کو، بلکہ اب آپ کو اس کی ڈائریکٹ تصویر ہی دکھاؤں گا۔ اس کے لہجے میں اس کی تعریف کرتے ہوس کی صاف شناسائی تھی۔ او تو ملنا پڑے گا وجدان شاہ کی بیوی سے تاکہ سیٹ بھی چھوڑ دے اور تھوڑی تمیز بھی سیکھ جائے۔ تم نظر رکھو اس پر۔ ملک نے مسکراتے اپنی کف لگی مونچھوں کو تاؤ دیا تھا، جبکہ اس طرح کرتے وہ زہر لگ رہا تھا۔ تم کب تک یہ سب سیکرٹ رکھو گے؟ ایم جے پریشان تھا۔ ابھی نہیں، بالکل بھی نہیں، میل چیک کرتے کہا۔ واضح وارننگ دی تھی۔ وہ فولڈر چیک کر رہا تھا جب یکدم رکا۔ یہ تمہارے پاس کیسے چہرے کے نقوش خطرناک حد تک بکھرے تھے؟ وہ ایم جے کا لیپ ٹاپ یوز کرتے کچھ کر رہا تھا جب ایک پکچر کے نقوش وہ غور کر رہا تھا۔ ماتھے پر بالوں کا اضافہ ہوا تھا، رگیں تنی تھیں، خطرناک حد تک اس کی تیور بگڑے تھے۔ کیا؟ ریلیکس انداز میں اپنی دھن میں ہی پوچھا تھا۔ یہ پکچر تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ چیخا تھا۔ اور ریلیکس بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ بچی کی ہے، وہ آرام سے بولا تھا اس کے تاثرات کا اندازہ لگائے بغیر۔ بچی کی تو ہے، پر تیرے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے اس کے گربان تک پہنچا۔ What rubbish is this? Leave my collar. Stupid نہ ہو تو اب تو مت کہیو کہ تو عاشق ہے اس کا، اس ترکی بڈھے کی طرح۔ وہ ہاتھ جھٹکتے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر نارمل لہجے میں بولا، کمینے ہمت کیسے ہوئی بکواس کی تیری؟ بیوی ہے وہ میری، سمجھا؟ بولتے ہی اس کے 3-4 مکے جڑ چکے تھے
اور ایم جے میں ہمت ہی نہیں رہی تھی اس جنگلی کا مقابلہ کر سکے جو وحشی پن پر اترا تھا۔ واٹ بیوی، واٹ آر یو ان یور سیریس؟ مجھے مارے گا تو اسٹوپڈ جنگلی انسان، ایم جے اپنا آپ بے بسی سے چھڑا رہا تھا جو اس پر چڑھ کر اس کو مارنے کے در پر تھا۔ بول تیرے پاس کیسے آئی، ورنہ تیری جان لینے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ ایک اور مکہ اس کے منہ پر مارتے بولا تھا، ناک تک اس کا زخمی کر چکا تھا۔ پلیز معافی دے دو بھائی، یہ اس ملک نے ہی دی تھی مجھے، وہ کانپتے بولا تھا۔ کیا اس کا مطلب ملک اس کے پیچھے؟ وہ ایک جھٹکے سے چھوڑتے اٹھا تھا، دماغ سن تھا، وہ نس پھٹنے والی تھی اور وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ملک وجدان شاہ کی بیوی کے پیچھے تھا، یہ سوچ ہی اس کے غصے اور دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ کمینہ جنگلی انسان، وہ اپنا ناک شیٹ سے صاف کرتا زمین سے اٹھا تھا اور اسے دیکھا جو کچھ سوچ رہا تھا۔ مسٹر وجدان شاہ، آپ اس بدتمیزی کو ایکسپلین کریں گے؟ کیا حرکت تھی یہ؟ وہ حلیہ درست کرتے غصے سے بولا۔ تو یہ سوچ کے تو میرے ہاتھوں مر نہیں گیا، ملک کا نام نہ لیتا تو یہاں اپنی آخری سانس گن رہا ہوتا۔ مطلب یہ لمس آئی مینس میری بھابھی جی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے برستے شعلے دیکھ وہ فوری بھابھی جی بولا تھا، ورنہ اس انسان کا تو بھروسہ نہیں تھا اسے ٹپکانے میں دیر نہ لگاتا۔ گھر آتے تک وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکا تھا۔ وجدان تم ٹھیک ہو؟ صدف جو اپنے روم میں جا رہی تھی لاؤنج میں آتے ہوئے اس کی بے چین شکل دیکھ کر پوچھا۔ فائن موم، آپ پریشان نہیں ہو؟ مسکرانے کی صحیح کی تھی، ورنہ جانتا تھا وہ اسے لے کر بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھے نہیں لگ رہا کوئی مسئلہ ہے، بتاؤ۔ ادھر آئیں، وہ ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں پڑے صوفے کے قریب لایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ایسے آپ پریشان نہیں ہوا کریں، ان کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، فکر ہوتی ہے مجھے تمہاری۔ کھانا کھایا میرے بیٹے نے؟ مسکراتے اس کے ماتھے سے بال سنوارے تھے۔ آپ کی بہو پوچھتی ہی نہیں ہے، معصومیت سے کہا۔ وہ بھی پوچھ لے گی، رخصتی تو ہو جانے دو، ابھی بچی ہے ان معاملوں میں، نہیں سمجھتی وہ، صبر رکھو تھوڑا میری جان، اس کی بات پر مسکراتے کہا۔ پتہ نہیں کب بڑی ہوگی وہ، مجھ میں اب صبر نہیں ہے موم، رخصتی ہو جانی چاہیے۔ وجدان نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ باز آؤ، ابھی تو بالکل بھی نہیں، اس کا فرسٹ سسٹم ہے، تو یہ بات تو بھول ہی جاؤ کہ میں اس پر کوئی ذمہ داری ڈالوں گی۔ وہ آنکھیں دکھاتے بولی، آپ مجھے اس کی ساس نہیں میری ساس لگتی ہیں۔ وجدان نے منہ بگاڑا، ہاں تو اس کی میں ماں ہوں، چلو اب اٹھو اور سو جاؤ۔ وہ خود اٹھتے ہی اسے ہدایت کرتے بولی تھی۔ ان کو مطمئن کرنے کے بعد وہ بے چین سا تھا، ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ٹائم دیکھا، 11 بجنے میں ابھی 5 منٹ تھے۔ کچھ سوچتے وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ مما، وہ مجھے ہیئر کٹ نہیں لینے دے رہا، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ بس روب جماتا ہے۔ وہ کوئی فوٹو فریم پکڑے غصے سے بول رہی تھی۔ وجدان حیران ہوا، وہ جو اس کے روم میں کام سے آیا تھا، کیونکہ زیادہ تر وہ اس ٹائم سو جاتی تھی، پر وہ تو جاگ کر اس کی برائیاں کرنے میں مصروف تھی۔ مما، ڈیڈ اور بانی آپی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، پھر بھی میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں، بہت زیادہ والا۔ کبھی کبھی وہ روتے تصویر کو دیکھتے بول رہی تھی۔ وجدان دروازے سے ٹیک لگائے اس کی باتیں سن رہا تھا اور ایک تکلیف محسوس ہوئی، وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے، چاہے جتنا بھی پیار کر لے انسان، مگر اپنے ماں باپ ہی اپنے ہوتے ہیں، وہ سوچ سکا۔ میری جان رو رہی ہے، وجدان کی آواز سے وہ چونکی اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو نہ جانے کب سے اس کے روم میں آیا تھا اور اب اس کے بیڈ کے نزدیک جو ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھی تھی گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ منہ پھیر گئی، ناراضگی جتائی۔ وجدان اس کی حالت پر مسکرایا جو ریڈ کھلی ٹی شرٹ میں کھلے بالوں اور روئی ہوئی گرے سوجی آنکھوں سے ضبط آزما رہی تھی۔ ڈارلنگ، سویٹ ہارٹ، میرے ڈمپل کوئن ناراض ہے؟ اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے اس نے پیاس بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے دیکھتے فی الحال سب فکر بھلا چکا تھا۔ وہ اس کا سافٹ چہرہ دیکھ حیران ہوئی اور اسی حیرانگی میں گال کا گڈھا نمودار ہوا تھا۔ وہ مسکرایا، میں تمہیں اپنے روم میں تمہاری ریئل بیوٹی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے پوچھا۔
क्योंकि वजदान को इश्क है लम्स वजदान की ओरिजिनल ब्यूटी से। बोलते ही वो उसके बराबर घुटनों के बल ऊंचा हुआ था और अपने लब उसके बालों पर रखे थे। मेरे रूम में आओ, फिर बताता हूँ किस हद तक शिद्दत से इश्क करता हूँ। उसे खुद में भीजे वो गमगीन लहजे में सरगोशी कर रहा था। लम्स का सांस रुक रहा था उसकी पनाहों में। वजदान, मुझे सांस, वो जो उसको सख्ती से खुद में समोए था, उसकी आवाज से होश में आया। उससे देखा जिसका पूरा चेहरा गुलनार हुआ था। गिरे आंखों पर भीगी खमदार पलकें उसे बेखुद कर रही थीं। You now lumps the most beauty say is in your grey eyes in the most danger। पागल करता है मुझे खुद पर काबू खोते वो दोबारा उसकी आंखों में झांका था। लम्स उसके लम्स में खोई थी। अभी वो कुछ और करता। वो उसकी ब्लू शर्ट मुट्ठी में ले चुकी थी। वजदान अनहूर वो उसके चेहरे के कदो खाल में खोया, बस इतना ही बोल पाया था। दरवाजा खुला है, वो रूहान से होते बोली। उसे खुद से दूर करना उसके बस में कब था, न वो अपनी मर्जी के बगैर होता था। वजदान उसकी हालत देखते पीछे हुआ और उसका हया से सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। रोना नहीं अब, उसके माथे पर मोहब्बत भरी मेहर मिस्बत की थी। बमुश्किल उसके शहर से वो आजाद होते उठा था, जो कि इंतहाई मुश्किल लग रहा था, और मजीद कुछ करने से पहले वो रूम से निकलता चला गया। पीछे लम्स अभी भी उसके परफ्यूम और एहसास को खुद में महसूस करते जी जान से शर्माई थी। ये घर पर तो तुम सुकून कर लिया करो, आंखें देखो पहले ही चश्मा लगा है और ऊपर इन मनहूस मोबाइल की जान नहीं छोड़ती तुम। ओ गैनी, बस थोड़ा सा काम है, आपको कुछ चाहिए? मरियम ने अपने कमरे में उन्हें बैठते देख कहा, फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। नहीं, तुम्हारे पास वक्त है मेरे लिए? वो गुस्से थी काफी। ये एक छोटा 4 कमरों पर मुश्तमिल घर था जिसे काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया था, जहाँ मरियम और उसकी दादी रहती थीं। उसके वालिदैन की डेथ हो गई थी। अब वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थीं। आप नाराज भी होती हैं? वो गाल खींचते बोली। मक्खन नहीं लगाओ मुझे अब। मतलब साफ था, वो नहीं मानने वाली। ओ, आप तो खुद बटर की तरह सॉफ्ट हैं, मुझे लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा बैठिए आप, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, आपकी भी बनाकर लाती हूँ, फिर मिलकर पियेंगे और बातें भी करेंगे। बोलते ही वो बिस्तर से उठी थी और पैरों में चप्पल उड़सी। ए मरियम, मेरे लिए वो अपना काला वाला पानी ना ही लाना, तुम मुझे बस एक कप चाय ही बनाकर दे देना। हा 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 हा, काला पानी नहीं, कॉफी ग्रेनी। वो हंसते बाहर गई। उसके जाते वो पुरसोच हुई थी। चाय पीने और कुछ बातें करने के बाद वो अब बिस्तर पर लेटी थी। उस दिन का वाकया सुनकर झुंझुरी ली थी। अगर वो ना आता तो कुछ सोचते वो एफबी पर किसी को सर्च कर रही थी। जब एक पॉइंट पर रुकी, अकाउंट खोले, वो उसकी प्रोफाइल घूर रही थी, जहाँ कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं थी। इन आर रिलेशनशिप। ओह वजदान शाह, तुम कितने कुरेशनशिप हो, वो बुड़बुड़ाई थी। उसके नजदीक सियासत वालों का इमेज कुछ ज्यादा ही खराब बना था। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बैक साइड से दाखिल हुई थी। आराम से, वो कैमरामैन से बोली थी। तुम यहीं रुको लड़के, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी सब। सबसे पहले हम अपने चैनल पर देखेंगे और इस तरह हमारी रेटिंग्स भी जल्दी बढ़ेगी। आंखों में चमक लिए वो बोली, और सबर झांसी की रानी, मैं साथ चलता हूँ। रेंडिंग के चक्कर में जान से न चली जाना। कैमरामैन को गुस्सा आया था, जो ज्यादा चालाक बन रही थी। कुछ आवाजें सुनते उसने चुप रहने को आंखें दिखाईं। जी सर, ये स्टोर तैयार है, मेडिकल रेप वाली भी साथ हैं, आप फिक्र ना करें। हा 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 हा। नहीं, कोई नहीं, वो भी साथ मिले हैं। वो जो कोई भी था फोन पर मगन अंदाज में बता रहा था। आउच। जब आगे बढ़ती वो एक भारी रोलर कंपोस्ट से टकराई थी। फोन करने वाला बंदा ठटका था। ए देख वहाँ कौन है, जाने ना पाए वो अपने बंदे से बोला। कैमरामैन भाग चुका था अपनी जान बचाकर, और झांसी की रानी वहीं कररा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो पागल लड़की?
उसे गुस्से से अपनी तरफ खींचा था। उस आदमी ने आने के पहले कोई वहाँ आया था जिसने उसके मुंह पर भारी हाथ रखकर चीख रोकी, कौन है यहाँ? वो आदमी वहाँ देखने आया और इर्द गिर्द मशकूक नजर से देख रहा था। वो सारी जगह चेक कर रहा था पर कुछ खास नजर नहीं आया। ओ, वो छुड़वाते आवाजें निकाल रही थी। उसके नाखून मारते हाथ भी अपने एक हाथ के कब्जे में लिए। मुंह बंद रखो, वो आंखें दिखाते आहिस्ता आवाज से गुर्राया। उस शख्स के जाने के बाद उसने हाथ हटाया और उस बेवकूफ को देखा। ये क्या बदतमीजी है, हाथ हटाओ, सुना नहीं तुमने, छोड़ो मुझे। गुस्से से उसके हाथ अपनी कमर से हटाए थे। तुम्हें पता भी है कि किस जगह खड़ी हो, क्या होता है यहाँ? एक सेकंड में तुम्हारे साथ क्या हो सकता है जानती भी हो? कमर से हाथ हटाते वो उसे दीवार से लगा चुका था और खौफजदा कर रहा था। इन योर लिमिट्स जाहिल इंसान। वो हाथ हटा रही थी। उस शख्स का रौब देख मरियम को गुस्सा आया। सुना था लंबे लोगों की अकल घुटनों में होती है, आज पता भी चल गया। सर तक पैर तक उसे सुलगाया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो आहिस्ता से चीखी। हटो पीछे पेंडू, उसके हुलिये को देखते कहा, जो शर्ट के आगे से बटन खोले लातादाद बाजू में पहने बैंड्स और फटी जीन्स में काफी बड़ी हुई दाढ़ी में उस पर पूरा झुका था। ये तुम्हें में पेंडू कहाँ से लगा? वो अपने आप को इस हुलिये में हीरो समझता था और वो पेंडू कह रही थी, हट जाओ पीछे, मुझे इस जगह का पता चला है, यहाँ खराब मेडिसिन बनती है। तुम भी इन्वॉल्व हो ना इन सब में? चश्मे में आंखें सुकड़ी थीं। तो तुम्हें क्या करना है? बनती हैं तो बनने दो, जल्दी बनो यहाँ से, बेवकूफ, सारा प्लान खराब कर देगी। दांत पीसते। तुम्हारी भी वीडियो बनाती हूँ, तुम भी शामिल हो ना? वो मिनी कैमरा जीन्स के पॉकेट से निकालती उसे वार्न कर रही थी, ए पागल, मेरा दिमाग खराब ना कर, बंद करो इसे और दफा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से बोला और खींचते उसे बैक साइड की विंडो की तरफ लाया। नहीं हो रही मैं, तुम रोक नहीं डाल सकते, मैं कवरेज करूंगी इस जगह की। वो छुड़वाते गुस्से से बोल रही थी, अब करो ऑन कैमरा और बनाओ वीडियो। उसकी बकवास से तंग आकर वो यकदम रुका और उसके खुले बालों में हाथ फेरता चेहरा अपने चेहरे के करीब तरीन किया। यकदम वो उसके नाजुक वजूद पर अटक चुका था। जीन्स पर ब्लू शर्ट पहने वो सादा से चेहरे में थी। मरियम की आवाज बंद उस शख्स की संगीन हरकत से वो खौफजदा हुई। जो जरा भी हिलती तो उसके होठ चेहरे से मिस हो जाने थे। बनाओ जान, मैं वेट कर रहा हूँ। ओहो रुको, ये चश्मा तो हटाओ, डिस्टर्ब कर रहा है, मजा नहीं आएगा ऐसे। चश्मा हटाते कैमरा वाला हाथ जबरदस्ती ऊपर किया और खुद मजीद करीब होकर हाथ भी कमर में डाला। अब हालत ऐसी थी कि उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था उसकी बेबाक हरकतों से। देखो दूर रहो, मैं वो बेबस हुई थी उसकी कुर्बत में, जो पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में कर चुका था और वो चाह के भी नहीं उसकी मजबूत गिरफ्त से खुद को छुड़ा पा रही थी। क्या मैं बनाओ न जल्दी, फिर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, देखना कितने ज्यादा लोग हमारा चैनल और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। चलो मैं ही शुरू होता हूँ। अभी वो करीब होता कि उसकी शर्ट का कॉलर से पकड़ते वो दूर कर रही थी। देखो दूर दूर रहो मुझसे पेंडू तुम। अच्छा रिपोर्टर साहिबा, अगर मैं दूर रहा तो फिर वीडियो कैसे अच्छी बनेगी? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। उसकी आंखों के खौफ ने मजा दिया। ओह नहीं बनानी मुझे कोई भी वीडियो, बस प्लीज दूर हो जाओ। छोड़ एक बार पेंडू, तेरा क्या हशर करती हूँ, दिल में वो सोच रही थी। क्यों मिस रिपोर्टर डरती भी हैं? अभी तो वीडियो बनानी थी। वो उसे छोड़ते दूर हुआ था। यू पेंडू, अभी वो कुछ करती कि सायरन की आवाज आई थी। ये पुलिस? वो हैरान हुई। ये बैक साइड से जल्दी से निकलो, वो विंडो खोलते बोला था। क्यों पेंडू, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कोई गलत काम नहीं किया, ना कोई चोर हूँ मैं जो भागूं। मरियम का खासा गुस्सा आया जो उसे भागने का बोल रहा था। ए दिमाग खराब नहीं करो, जाओ यहाँ से। उसने खुद भी उसको जाकर सारी सूरत हाल से आगाह करना था और वो लड़की मजीद दिमाग खराब कर रही थी। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो सामने देख रही हो
टेबलेट ग्लेंडिंग मशीन इसमें डालकर तुम्हें ग्लैंड कर दूंगा। वो दांत पीसते बोला। व्हाट तुम कौन हो? मुझे अभी क्यों लगा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। वो सब बातें छोड़कर करीब आई थी और गौर कर रही थी चेहरे के नकोश। वो गड़बड़ाया था। उससे पहले कि वो कुछ करती या कहती, पुलिस और कुछ इन्वेस्टिगेशन की टीम ऊपर पहुंच चुकी थी और हर जगह चेकिंग कर रही थी। देखो, लास्ट टाइम तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, ये तुम्हारे मामू नहीं हैं, वो तुम्हें भी ले जाएंगे। ये समझ कर के तुम भी शामिल हो, मेरी माँ चली जाओ। वो अब सच हो चुका था उस निडर लड़की से। मरियम को उसकी बात ठीक लगी थी। जाओ। जा रही हूँ। वो गुस्से से खिड़की से जम लगाते उतरी थी। कौन हो तुम लोग? वो फैक्ट्री का मैनेजर खौफजदा था। ब्राउन आंखों में चमक लिए उसने अपना कार्ड दिखाया था। क्रिमिनल इन्वेस्टिगर। आप? वो खौफ से कार्ड देखते कांपा था। अरेस्ट देम। गुस्से से वो अपनी टीम से बोला था। उठा क्यों नहीं रहे आप? वो झुंझलाई थी। अब वो कब से वजदान को फोन कर रही थी, जिसने सुबह छोड़ते उसे सख्ती से कहा था कि वहीं उसे पिक और ड्रॉप करेगा। क्लासेस से फ्री होते उसे कॉल करते थक कर सदफ के नंबर पर की। हेलो मम्मा, आपका बेटा कहाँ है? घंटा हो गया मुझे कॉल करते, नहीं उठा रहे वो रूहानसी हुई बोली थी। लम्स, तुम ठीक हो बेटा? सदफ पूरी परेशान हो गई थी। जी मैं ठीक हूँ मम्मा, वजदान ने मुझे लेने आना था, मैं कब से वेट कर रही हूँ। फौरी नॉर्मल हुई। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, बिजी हो गया होगा, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ। फोन पर उसे तसल्ली देती वो ड्राइवर से अब कहने लगी थी। कुछ टाइम बाद ड्राइवर के आते वो गाड़ी में बैठी थी, जब कोई और भी उन्हें फॉलो कर रहा था। एकदम गाड़ी रुकी थी। क्या हुआ? वो परेशान हुई गाड़ी रुकने से। पता नहीं बेटा, मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से उतरा था और वो चेक कर रहा था। उफ, काफी टाइम हो गया था। गर्मी महसूस करते वो कंधों पर ब्लैक शाल ठीक करते बाहर सड़क पर निकल आई। क्या हुआ है अंकल? वो उसको चेक करते करीब गई। आप बैठ जाइए अंदर, मसला तो कुछ भी नहीं है, मैं चला कर देखता हूँ। वो ड्राइविंग सीट पर गया। गाड़ी मसला न होने के बावजूद नहीं चली। वो बाहर खड़ी इर्द गिर्द देख रही थी। रोड पर बस चंद एक गाड़ियां ही थीं। खुली फिजा में सुकून सा महसूस किया। बाहर वो कम ही निकलती थी। अगर वो वानिया कहीं जाती थीं, तो वजदान साथ होता था, जिसके साथ वो कम अज कम अपनी मर्जी नहीं चला सकती थी। दूर से उसे कैमरे लिए कोई निहारने में मसरूफ था और वो उस चीज से बेखबर थी। ओह, हो गया, ये किसी ने बोतल फंसा दी थी। वो निकालते गाड़ी में आया और लम्स भी सुकून का सांस लेते बैठी थी। हैंड्स अप एमजे, तुम पकड़े गए हो, कोई होशियारी नहीं। कदरे कोने में आकर वो खड़े शख्स से बोला था। यू? एमजे डरते पलटा और फिर दोनों ने कहका लगाया। थैंक यू, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। दिल से तारीफ की। मुझे चुटकी काटें, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। वजदान शाह और तारीफ। वाओ अमेजिंग। वो शौक की कैफियत में था। मिस्टर मुराद जहांगीर उर्फ एमजे, क्या तुम जानते हो, सियासत से मुझे सख्त नफरत है और पुलिस का डिपार्टमेंट मुझे जहर लगता है, पर फिर भी तुम मेरी गुड बॉक्स में शामिल हो। वो दोनों बातें करते कुछ देर पहले की गई सेल्ड इंडस्ट्री से बाहर गाड़ी के पास आ चुके थे। वेरी फनी। मुझे भी कसम से सीआईडी अफसर जहर लगते हैं। मतलब उसने भी वजदान को तंज किया था। अभी वो मजीद बोलता कि वजदान के फोन पर कॉल आ रही थी। होल्ड ऑन, तुम्हें बाद में जवाब देता हूँ। मुराद को आंखें दिखाते वो ड्राइविंग सीट पर बैठते फोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। कैसे हो वजदान शाह? कौन? वजदान हैरान था। मुझे नहीं पहचाना? खैर, उस दिन तो बड़ा अकड़ रहे थे। वैसे जनाब, आपकी बीवी है बड़ी खूबसूरत। क्या ख्याल है फिर डील हो जाए? मैं सीट छोड़ दूंगा, तुम मुझे अपनी बीवी। वजदान ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की और लब भींचे, माथे और हाथों की रगें तन चुकी थीं। उसकी बकवास पर उस शख्स को पहचानते वो इतनी जोर से चीखा था कि मुराद भी खौफजदा था। यू ब्लडी इडियट, कमीने, हरामी, मलिक, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा।
तेरी जान ले लूंगा अगर एक लफ्ज भी अपने गंदे नापाक मुंह से निकाला तो। बस नहीं चल रहा था उसका कि अपने हाथों से शूट कर दे। मुराद समझ गया कि वो क्यों गुस्से में है। ना ना बेटा, गुस्सा नहीं करते, अभी अभी देखा ब्लैक दुपट्टे और वाइट कपड़ों में क्या गजब थी। मलिक तपा रहा था और इस तरह करते दिली सुकून मिल रहा था उसे। वजदान का दिल बंद होने के करीब हुआ था। कहाँ देखा उसने लम्स को। अभी तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ, सोच विचार करना मेरी बात पर, सेठ या बीवी। बोलते ही वो दांत निकालते फोन बंद कर चुका था। वजदान जो शदीद तेज में था, अगले लम्हे फोन जोर से डैशबोर्ड पर फेंका जहां लम्स की चंद खींची गई तस्वीरें भेज चुका था। वजदान रिलैक्स यार, मुराद ने उसे काबू करना चाहा। शट अप, उतर गाड़ी से, निकल बाहर, वो गुस्से से चीखा था। उस वक्त उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मलिक के टुकड़े टुकड़े कर दे। वजदान, तुम गुस्से में हो, तुम दफा हो रहे हो या नहीं? उसके गुस्से से वो फौरी गाड़ी से निकला था, जबकि वो गाड़ी फुल स्पीड से निकालते वहां से चला गया। गाड़ी रोकते वो तेजी से अंदर बढ़ा था। जब गेट कीपर और गार्ड उसे रोकते रहे, पर वो कहाँ किसी के काबू में आने वाला था। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश भी की तो तुम लोगों का हशर तो मेरे हाथों बिगड़ेगा, पर अपनी फैमिलीज का हाल भी बुरा होता हुआ देखोगे। अब सबको शोला बरसाती नजरों से वार्न किया। कहाँ है वो कुत्ता? वो अंदर दाखिल होता गार्ड से बोला। तुम अंदर नहीं जा सकते, मलिक के पर्सनल गार्ड ने उसे रोका। बोल कहाँ है वो? तेरा भेजा उड़ाने में मुझे एक सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। पिस्टल निकालते उसके सर पर तानी। गार्ड ने फौरी डरते रास्ता दिया। मलिक जो अंदर रिलैक्स अंदाज में बैठा कोई डील कर रहा था, दरवाजा जोर जोर से खुलने से सामने देखा जहां वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रहा था। जा यहाँ से। 1 मिनट से पहले मलिक के सामने बैठे शख्स से वो गुस्से से मुखातिब हुआ था, जो फौरी चला गया था बाहर। तू यहाँ कैसे? मलिक हैरानगी और गुस्से से बोला। वो गार्ड से कुछ कहता जब वो उसके सर पर पहुंच चुका था। तेरी हिम्मत कैसी हुई बुड्ढे, बकवास की कमीने कुत्ते, तूने सोच भी कैसे लिया कि वो बकवास में तेरी जान ले लूंगा? मलिक वो उसकी कमीज के गिरबान से पकड़ते मलिक की जान लेने पर तुला था। ए छोड़ पागल, ए ले जाओ इस जंगली को। अगर कोई मेरे करीब आया तो ये मलिक की जान तो जाएगी। वो पिस्टल उसके सीने पर रखते धाड़ा, और तुम लोग भी अपनी आखिरी सांसें लोगे। दूर दूर हो जाओ सब, कोई करीब ना आए। मलिक गार्ड से खौफ से बोला, जो उस पर पिस्टल ताने था। वजदान शाह, मैं तेरा बुरा हशर कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो अपना आप छुड़ाते बोल रहा था, जो उसकी हड्डी पसली एक करने में मसरूफ था। मलिक कहाँ इतनी ताकत रखता था कि उससे मुकाबले की, जो इन मामलों में अच्छा खासा माहिर था। बामुश्किल 3-4 गार्ड्स उसे उसके शकंजे से निकाल पाए थे, जिसका मलिक की जान बख्शने का कोई इरादा नहीं था। आइंदा मेरी बीवी का नाम या उसके बारे में सोचा भी तो ये हशर याद रखे, तुझे किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। वजदान ने एक नजर उसके अधमरे वजूद को देखा और जैकेट ठीक करते तंजिया बोलते चला गया। नमक हरामो, मेरी कमर। उसकी शक्ल देख रहे थे तुम लोग, उठाओ मुझे। वो नाक और जख्मी मुंह से कर्राते अपने गार्ड पर चीखा, जो वजदान से उसे बचा नहीं पाए थे। ड्राइवर से बात करते तेज ड्राइविंग करते वो घर जा रहा था, जिसने बताया था कि लम्स अभी कुछ टाइम पहले पहुंच चुकी है। सुकून का सांस खारिज करते अब उसकी क्लास लेनी थी, जो पिछले आधे घंटे में उसकी जान निकाल चुकी थी।